Good evening, everyone. On behalf of Mankind Pharma, I take this immense pleasure and opportunity in extending a warm welcome to all to Gyan Setu, a certificate course in practical diabetology, a dynamic and interactive learning experience designed to empower practitioners with the knowledge and skills needed to manage diabetes effectively. Our program goes beyond traditional learning approaches by incorporating real-time cases and engaging pictorial presentations. Through this innovative online platform, we aim to bridge the gap between theoretical knowledge and real-world application. All of this will be simplified and discussed in our mother tongue Hindi, which will surely make it convenient and easy to comprehend. But before we move forward, let me share with you a brief journey of Mankind Pharma in Indian pharma industry. 2024 is the year when Mankind Pharma has successfully completed more than 28 years of journey in Indian healthcare landscape. We started our operations in 1995 by our first generation entrepreneur, Shri Ramesh Chandra Juneja ji, our founder chairman with a vision to create the most admired Indian pharmaceutical company with its focus on providing quality healthcare products and services at most affordable cost and with extensive availability to our patients. Keeping that vision in mind, today Mankind is the fastest growing and fourth largest Indian pharma company. Incorporated in 1991, we are one of India's largest pharma companies with #1 rank in prescriptions and with 21 manufacturing facilities and more than 22,000 employees who are engaged in developing, manufacturing, and marketing a diverse range of pharmaceutical formulations. Few important milestones in our journey over the last 2.5 decades include our achievement to have leadership position among majority of therapeutic segments. Launched in 1995, by 2008, we established our position as the #1 player in India. Our significant achievement during the last few years has helped us to build an organization and infrastructure that has led us to spread our wings in global markets. In 2013, we started venturing into exports and international operations, whereas we launched our US operations in 2017. And in 2019, we got the US FDA approval for our plants on finished dosage form. Mankind was the first in India and second in the world to develop dydrogesterone. And recently, in 2022, we acquired Panaccia's India and Nepal business. Our state-of-the-art R&D capabilities have a strong R&D pipeline with 90 plus abbreviated new drug applications. We have also planned to come up with a generic version of pembrolizumab. We have 3 new chemical entities in pipeline with GPR119 agonist, a novel oral anti-diabetic agent showing promising prospects. Our R&D is currently developing novel therapeutic agents in different therapy areas, which include diabetes, autoimmune disorders, oncology, and immuno-oncology. The latest milestone in Mankind's journey is the launch of DMF-grade API products in India for Indian patients at Indian prices. DMF is a submission to US FDA about the manufacturing, processing, packaging, and storing of human drugs. It contains factual and complete information on a drug product, starting from manufacturing, flavor, drug substance, purity of drug along with impurity content, materials used to prepare drugs, drug excipients, stability of drug, and information about the packaging material. DMF communicates quality, safety, and efficacy of the drug that is internationally accepted, and therefore DMF is the assurance of superior quality. But in India, DMF is not mandatory, and also high costs of production can result in price increase and reduction in profitability. But when diseases don't differentiate between countries and nations, why should medicines and care be differentiated? Therefore, Mankind Pharma has taken this pledge and initiative to bring the DMF-grade API products in India at Indian prices. In the country's fight against COVID-19, Mankind has provided significant financial support to more than 2,000 families of healthcare providers under Naman initiatives. And Mankind's commitment to the society continues with the launch of Onco Mankind, where we have pledged to donate all the profits to Tata Memorial Center.
On May 2000, May 9th May 2023, Mankind successfully launched in its IPO. Dear doctors, it is with your patronage that Mankind has reached so far, and our endeavor to partner with healthcare providers will help us to achieve our overall objective and mission of improving healthcare for the nation. With this, we welcome you once again to today's session, and may I now have the honor and privilege to welcome our course director, who is none other than Dr. Pankaj Kumar Agrawal, who is a well-known face in the field of diabetes and endocrinology with over 25 years of experience. Sir is a consultant endocrinologist in Ghaziabad. He is the founder of the Medical Concepts in Hindi, Chief Editor, Journal of Medical Concepts in Hindi, University Examiner for DM Endocrinology students. He's a President-elect for UP Diabetes Association. He's a Fellow of the Indian Academy of Clinical Medicine and UP Diabetes Association. And Sir is known for his continuous contribution to society by his educational initiatives, especially Medical Concepts in Hindi. Under MCH, Sir publishes Journal of Medical Concepts in Hindi, JMCH, which is the first medical journal in Hindi in India. He has authored several textbooks, prepares educational videos, and conducts certificate courses. All these activities are available on the website medicalconceptsinhindi.in. Sir, I welcome you on behalf of Mankind Pharma, and it is our honor to have you with us. But before I hand over the session to Sir, I would just like to request all the attendees to post their questions in the chat box. And this is a journey of 5 modules where we are starting with the first module today, which is on clinical evaluation of a diabetic patient and initiation of anti-diabetic therapy. With these words, I invite Sir for his talk. Over to you, Sir. धन्यवाद डॉक्टर विजय और नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम लोग साथ जुड़े हैं एक ज्ञान सेतु, एक यात्रा पे हमारे क्लिनिकल स्किल्स को और उभारने में सहायक हो सके, जो हमें एक क्लिनिकल वर्कअप, क्लिनिकल एक्यूमेंट को ग्रहण करने में और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को और एनरिच करने में जो मदद कर सके। यह कार्यक्रम हम लोग अपने मिशन मेडिकल कंसेप्ट हिंदी के माध्यम से करते हैं, जहां पे हम अपनी बातों को सरल रूप में आपके समक्ष रख सकें और सरलता से मैं कह सकूं, सरलता से आप समझ सकें, और हम लोग केवल उन बातों को विशेष रूप से उसमें उनका वर्णन करें जो हमें हमारी क्लिनिक में, हमारे क्लिनिकल वर्कअप में, क्लिनिकल मैनेजमेंट में सहायक होती है। हम थ्योरेटिकल तथ्यों को भी प्रैक्टिकल रूप में आपके समक्ष रखेंगे, जिससे कि हम उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को किस प्रकार क्लिनिक में उतारना है, उन बातों का वर्णन करें। एमसीएच की इस यात्रा में जैसे कि अभी वर्णन हुआ कि हम लोग टेक्स्ट बुक, ई जर्नल्स, ई टेक्स्ट, वीडियोस, केस स्टडीज, इन बातों को समक्ष रखते हैं, और यह हमारी वह पुस्तकें हैं जो हमने इसके माध्यम से अब तक प्रकाशित की है। मैनुअल, एमसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज, जो हमारा अभी हाल में ही प्रकाशित हुई है। थायराइड ग्रंथि, जिसमें एनाटॉमी से लेके सर्जरी तक थायराइड ग्लैंड के सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, रक्त एवं लिम्फ विज्ञान, और यह वो जर्नल्स हैं जो हम लोग 15 अगस्त 2022 से आरंभ करके, अब हम लोग अमृत वर्ष से आरंभ करके हम लोग इसके 18 अंक प्रकाशित कर चुके हैं। आप सब भी इसके लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप लोग हिंदी में, सरल हिंदी भाषा में लिखिए और हमें भेजिए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी इस जर्नल में आप लोगों के कार्यों को स्थान देने में। तो इन पुस्तकों और इन जर्नल्स के साथ, जिनको अब राष्ट्रीय मंचों में भी स्थान मिला, माननीय योगी जी ने उसको मंचन किया और एपिकॉन नेशनल के भी मंच में इस पुस्तक का अनावरण किया गया, और पहली बार
एपीआई नेशनल बॉडी इस अपनी मेडिसिन अपडेट में एक हिंदी के आर्टिकल को प्रकाशित किया। तो इनके साथ में हम लोग, अब जैसे कि बताया गया, ये सारा वेबसाइट में उपलब्ध है, और जो व्यक्ति, जो मित्र इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने कार्यक्रमों को नियमित रूप से उनके साथ शेयर कर सकें। 9599334581। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं हम क्लिनिकल डायबिटोलॉजी के इस सेशन को, कि जिसमें हम डायबिटीज के मैनेजमेंट में किन किन बातों का, किन किन तथ्यों का ध्यान रखना है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम जानते बहुत कुछ हैं, पढ़ते बहुत कुछ हैं, और अपने कॉन्फ्रेंसेज में सुनते बहुत कुछ है, लेकिन कई बार उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको उपयोग में नहीं लाते, तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो हमें अपनी क्लिनिकल स्किल इंप्रूव करनी है कि किस प्रकार से जो हमने पढ़ा समझा उसको हमने अपनी क्लिनिक में कैसे उपयोग में लाए। सब कुछ वर्णन करके, जैसे हमने कहा सर्टिफिकेट कोर्स, एक अपेक्षा होती है कि ए टू जेड सारी चीजें कवर कर दी जाए। जब ए टू जेड सारी चीजें कवर की जाती हैं, तब उसमें हर चीज थोड़ी 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 आ जाती है, तो हमारे काम की चीज भी थोड़ी हो जाती है, और वह हमारे लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं। तो जिन बातों पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, हम उन्हीं बिंदुओं को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है एक रेशनल थिंकिंग उत्पन्न करना, कि जो हम देख रहे हैं, कहा क्या पेशेंट आएगा तो एग्जामिन क्या करना है, सबसे लेके पैर तक सारी चीजें एग्जामिन करनी है। हर व्यक्ति में आदर्श व्यवस्था संभव ही नहीं है कि हर पेशेंट आया तो हम उसको पूरा अगर सबसे पैर तक एग्जामिन करें, सारी चीजें उसकी, पहले पर्सनल डिटेल, फिर फैमिली डिटेल, फिर ऑक्यूपेशनल डिटेल, सारी चीजें अगर पूछें तो पेशेंट हमारा कवर नहीं हो पाएगा। तो हमें यह समझना है कि कैसे थोड़ी थोड़ी बातों से हम उसको अपनी एप्लीकेशन में ला सकें। मैं आपको केवल बताता नहीं जाऊंगा, मैं इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रश्न सामने रखता रहूंगा। थोड़ी सी लाइट कम कर दीजिए। तो यह प्रश्न हमें सक्रिय रखते हैं, हमारे दिमाग को भी सक्रिय रखते हैं, जिससे हम चीजों को बेहतर तौर से ग्रहण कर सकें। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मैंने बताया यही करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को, जिससे एक सहमति के आधार पर हम किसी कार्य में आगे आ सकें। तो चलिए मित्रों, यहाँ से आरंभ करते हैं आज का मॉड्यूल 1, और इस मॉड्यूल 1 में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो डायबिटीज में किसी व्यक्ति के उपचार आरंभ करने के पहले हमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो यह एक परिवार है। राम जन्मभूमि का कार्य हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की, भगवान राम विराजे, और यह परिवार अयोध्या जी दर्शन करने जाना। उसने सोचा कि 4 दिन बाद जाना है, आज डॉक्टर साहब से मिलते चले, और डॉक्टर साहब से जरा अपनी स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी चर्चा करते। तो ये आए, और सबसे पहले इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, डायबिटीज की बड़ी चर्चा हो रही है, और डायबिटीज में हम ये चाहते हैं कि जरा देख लीजिए कि हम लोगों को डायबिटीज वगैरह तो नहीं, बाहर जा रहे हैं, उल्टा सीधा खाना पीना भी कुछ वहां पे तला भुना होगा, तो हम लोग की क्या स्थिति है जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न हम पहले तो इन प्रश्नों में पोलिंग कराते थे और आपसे उत्तर मांगते थे, लेकिन अब हम ये देख लें कि थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ जाता है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा समय लग जाता है। तो मैं आपके समक्ष प्रश्न तो रख रहा हूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना आंसर नोट जरूर करें, जिससे कि आप उस आंसर के साथ अपने मैंने ये कहा था उस पर दृढ़ रहे, वरना बाद में आदमी कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा था, जो गलत वाला आंसर नहीं। तो इससे बचने के लिए अब इस परिवार को हम किस प्रकार से स्क्रीनिंग करें। जब वो आया तो हमने उसकी रैंडम ब्लड ग्लूकोज देखी, या उसको बाद में बुलाया फास्टिंग और पीपी मतलब भोजन के बाद की शुगर को देखने के लिए, या उससे कहा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराओ, ग्लूकोज पी के, ग्लूकोज पीने के पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का, या खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे। आप इसमें इस परिवार के व्यक्तियों को किस विधि के द्वारा स्क्रीन कराना चाहिए,
आपने अब तक उत्तर सोच लिया होगा, बड़ा सरल सवाल है, सबसे पहला स्टेप। और आज जो हम लोग एक हर चीज का मानक निर्धारित किया जाता है, आज वह मानक इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते यहाँ पे आके ठहरा है कि हम एक स्टैंडर्डाइज विधि अपनाएं। हर व्यक्ति को एक बार खाली पेट और एक बार 75 ग्राम ग्लूकोज को पीने के 2 घंटे बाद। अब यहाँ पे कई प्रश्नों को समझना, बिंदुओं को समझना वो बहुत आवश्यक है कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज मैंने लिखा, फास्टिंग पीपी ब्लड ग्लूकोज लिखा, लेकिन फास्टिंग और 75 ग्राम के बाद प्लाज्मा ग्लूकोज। तो यह क्या चक्कर है इसमें? शुगर, कुछ लोग कहते हैं कि जो रैंडम शुगर करा, तो शुगर और ग्लूकोज में अंतर। पहली चीज तो जरा, और ये हम अपनी पुस्तक से इन चीजों को वर्णन कर रहे हैं, जो एमसीएच मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज है, उसमें प्रथम अध्याय में हमने यही डिस्कस किया है कि यह जो टर्मिनोलॉजी जो हम लिखते हैं, वो लिखने में हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना। सही शब्द क्या है? शुगर नहीं, क्योंकि शुगर में सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज। तो एक तो हम सबको आज यह निश्चय करना है कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे शुगर नहीं लेंगे, ब्लड शुगर नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेंगे। अब यूरिन में कराएंगे या ब्लड में कराएंगे? यूरिन में नहीं कराएंगे। 2024 में बैठे हैं, 1857 की बात नहीं करेंगे। हम यूरिन में नहीं, हम ब्लड में ही शुगर कराएंगे। फिर आप कहेंगे आपने तो ब्लड भी लिखा था, प्लाज्मा भी लिखा था, हम ब्लड ग्लूकोज कराएं या प्लाज्मा ग्लूकोज कराएं? तो यहाँ पे अंतर है। जो हम ग्लूकोमीटर से करते हैं, ग्लूकोमीटर में हम पूरे ब्लड का उपयोग करते हैं, तो उसको हम ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। जो हम वेन से निकाल के उसको सैंपल से उसमें प्लाज्मा सेपरेट करके लैब में जो टेस्ट करते हैं, वो प्लाज्मा ग्लूकोज। तो हमें चीज का सही वर्णन करना है कि जो वैल्यू है वह ग्लूकोज की है, वह ब्लड ग्लूकोज मतलब कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मतलब ग्लूकोमीटर से कराई गई है, या वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब लेबोरेटरी से कराई। फास्टिंग वर्सेस पीपी, हम कौन सा टेस्ट कराएं? रैंडम की जो हम लोगों को आदत है, यह अच्छी आदत नहीं है। यह हमें दिग्भ्रमित करती है, मिसगाइड करती है। कभी भी चलते फिरते करा ले और उसको देखा ठीक ठाक सी है, हाँ ठीक है, तुम्हें 150 शुगर है, चलेगी, ठीक है। लेकिन वह व्यक्ति तो खाली पेट था, तो रैंडम शुगर जो खाली पेट के करीब है, 150 खुल जाता है। और वह भोजन करके 1 घंटे पे आया था, उस वक्त 1 घंटे पे 150 रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हमें रैंडम ग्लूकोज करना भी पड़ रहा है, तो रैंडम ग्लूकोज में हम नोट कर दें कितनी देर पहले भोजन लिया। डायबिटीज की सारी कहानी हमारी भोजन पर आधारित है, घड़ी पर नहीं। 6 बजे की शुगर है ना, उससे हमें मतलब नहीं। हमने कहा भोजन के पहले करे ग्लूकोज है, तो यह भोजन के 1 घंटे बाद हमें करनी पड़ गई किसी विशेष परिस्थिति, या भोजन के 4 घंटे बाद किया, तो वह हम भोजन से संबंध लिखें, ना कि 12 बजे दोपहर की है या शाम के 5 बजे। तो हमेशा हमें जो टेस्ट कराना है रैंडम केवल इमरजेंसी में, उसके अतिरिक्त फास्टिंग कराना है या पीपी पोस्ट प्रैंडियल भोजन के बाद। कितनी देर बाद, यहाँ पे बड़ा झंझट है। कुछ लोग 1.5 घंटे, कुछ 1.25 घंटे, कुछ 2 घंटे, कुछ 2.5 घंटे। 2 घंटे पर टेस्ट कराना है, जिससे कि हम सब एक दूसरे की वैल्यूज को परस्पर एक दूसरे से उसकी तुलना कर सकें। 1.5 घंटे पे कुछ होगी, 2.5 घंटे पे कुछ होगी, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। दूसरी चीज, 2 घंटे कब से? भोजन आरंभ करने से। भोजन समाप्त करने में हमें 10-15 मिनट लगता है, तो वहां से फिर टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो खाली पेट भोजन आरंभ करने के 2 घंटे बाद। अब खाने के बाद कराएं या ग्लूकोज पीने के बाद कराएं? जब पहली बार हमें किसी व्यक्ति की स्क्रीनिंग करानी, तो स्क्रीनिंग हम कराते हैं, एक व्यक्ति ने खाई 4 रोटी, दूसरे ने खाई 2 रोटी, एक ने साथ में खाया 2 गुलाब जामुन, दूसरे ने खाया सलाद। तो इसमें बहुत अंतर हो जाता। तो हमें पहली बार कराने के लिए भोजन के बाद ना करा के हम प्लाज्मा ग्लूकोज कराएंगे, पोस्ट ग्लूकोज कराएंगे, ग्लूकोज पीने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दिया और उसको पीने के ठीक 2 घंटे पे हमने टेस्ट कराया। यह कितना?
तो 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे पे कराई गई जो शुगर है, वह सभी व्यक्ति 75 ग्राम ले रहे हैं, सभी 2 घंटे बाद करा रहे हैं, तो उनकी आपस में तुलना और एक स्टैंडर्डाइज फिगर हम उससे तैयार कर सकते हैं। तो पहली बार कराने में आफ्टर ग्लूकोज, एक बार ग्लूकोज की टेस्टिंग करा ली तो अब दोबारा आफ्टर ग्लूकोज नहीं कराना। अब भोजन करने के बाद अगर व्यक्ति डायबिटिक है तो हम भोजन से उसकी तुलना करेंगे और 1.5 पौने 2 घंटे पे नहीं, भोजन आरंभ करने के 2 घंटे पर ग्लूकोज पिलाना है तो अब हम 50, 75, 100 ना देके एक स्टैंडर्ड फिगर 75। यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी में होने वाली जेस्टेशनल डायबिटीज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हमको कंफ्यूज कर सकते। तो देखो, छोटी सी बात में कितना लंबा डिस्कशन, हमारा पूरा पहला अध्याय ही इसी के ऊपर है कि हमें ग्लूकोज की जांच कौन सी करानी है, किस प्रकार से करानी है, क्योंकि यही हमारे लिए आवश्यक है जानना। हम गलत तरह से पेशेंट को स्क्रीन करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। यूरिन में शुगर नहीं करानी, क्योंकि यूरिन में शुगर 1857 में होती थी, अब नहीं, अब हमें ब्लड में ही करानी है, रैंडम नहीं करानी। हमें 0, 30, 60, 90, 120 मिनट में इतनी सारी जांचें नहीं करानी। अब बात आई हमारे पास दो जांचें, खाली पेट की शुगर और खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद। कल हमारी हम एक मित्र से बात हो रही थी, तो बात हो रही थी कुछ व्यक्तियों में हमारे डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम में बहुत तरह के रोगी हैं। कुछ है जिनमें फास्टिंग प्रिडोमिनेंटली बढ़ती है, कुछ है जिनमें पीटी प्रिडोमिनेंटली बढ़ती है। तो कुछ व्यक्ति मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे फास्टिंग ज्यादा होती है, पीटी फास्टिंग से भी कम हो जाती है और ग्लूकोज पिला दे तो और कम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हम केवल ग्लूकोज लोड पिला के चेक करेंगे तो वो लोग रह जाएंगे। उसके विपरीत कुछ व्यक्ति होते हैं जहां फास्टिंग नॉर्मल होती है, पीटी एकदम शूट करती है, तो केवल फास्टिंग से स्क्रीन करेंगे तो वो रह जाएंगे। तो फास्टिंग बहुत आसान है करना, पेशेंट को बुलाया खाली पेट और कर दिया, लेकिन वह कई उन व्यक्तियों को हम मिस कर देंगे जिनमें ग्लूकोज पीने के बाद या भोजन करने के बाद शुगर बढ़ी। तो इसलिए केवल फास्टिंग भी नहीं और केवल पीपी या पोस्ट ग्लूकोज भी नहीं, दोनों को जब हम करके देखते हैं तो हम हर प्रकार के व्यक्ति को सरलता से समझ सकते हैं। तो 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये किस प्रकार से कराते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने कोई विशेष बात नहीं की, लेकिन हमने सारी वो बातें की हैं जो हमें रोजमर्रा की प्रैक्टिस में उनको प्रयोग में लाना, और यही आवश्यक है। हम बातें बड़ी बड़ी करें और काम रैंडम ब्लड शुगर लिखने का करें तो वह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते कैसे हैं यार, इसमें कौन सी बात है तुम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे हो, लेकिन बात है आप स्वयं कभी 75 ग्राम ग्लूकोज अपने ऊपर कराते देखें, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या विशेष बात। मैंने इसलिए आपसे ये वाली बात कही क्योंकि मैंने इस चीज का अनुभव स्वयं किया। 75 ग्राम ग्लूकोज जब आप पीते हैं तो नंबर 1 बहुत मीठा होता है, वो पी के लगता है पेट फूल सा गया और लगता है उल्टी बिजली सी आ जाएगी। वह ठंड के दिनों में आज के जैसे बहुत ठंडा लगता है गला जल जाएगा। इसका जुगाड़ निकालना होगा। हमें हर चीज को जो बाहर से कही गई है अपनी भारतीयकरण करना है। तो हमने पानी आजकल के मौसम में थोड़ा गुनगुना ले लिया, लेकिन ये वाली बात आप जब कहेंगे तब व्यक्ति को समझ में आएगी। पहले हम समझे फिर हम अपने पेशेंट को समझाएं, उसके लिए सहज हो जाएगा। वो कहेगा फला फला डॉक्टर साहब है ना, वो एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाते हैं, तो उनके साथ कुछ काम कराने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले वाले ने तो ऐसे ही घोल के पिला दिया था, मैंने उल्टी करता हुआ आ गया था, 2-3 बार टेस्ट कराना पड़ा तब जाके हो पाया। इन्होंने मुझे फंडा बताया कि पानी थोड़ा गुनगुना ले लो, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने डालने के बाद उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा चाट मसाला, नींबू डाल दो, अब वो नौसिया नहीं आएगा, तो गला भी खराब नहीं होगा, उससे नॉजिएटिंग नहीं लगेगा, वो पैलेटेबल हो जाएगा और हम उसको सहजता से करा सकते। तो यह एक बार खाली पेट, एक बार 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के ठीक 2 घंटे बाद जब हम ये जांच कराएंगे, और ध्यान रहे ग्लूकोज पीने के बाद वाली जांच वह हमेशा लैब से कराएंगे।
क्योंकि जो हमारे ग्लूकोमीटर में थोड़ा वेरिएशन कभी कभी आ सकता है, तो लैब को हमेशा हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसमें हमें लैब से करानी। तो स्क्रीनिंग में जितनी हम लोग बात कर रहे हैं वह ग्लूकोमीटर की बात ना करके वह हम लेबोरेटरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, हमने इस परिवार के सदस्यों का फास्टिंग और 75 ग्राम ग्लूकोज लोड के 2 घंटे बाद की जांच कराई। इनमें से हम पहले ये ध्यान कर लें कि कौन सी वैल्यू ठीक है, किस वैल्यू को हम कहते हैं ये नॉर्मल है और किस वैल्यू पे हम कहते हैं डायबिटीज। अब इसको देख के आप अपना ए सही है, यह वैल्यू नॉर्मल है, या यह नॉर्मल है, या यही है, या इनमें से डायबिटीज इससे अधिक हो तो डायबिटीज कहते हैं, इससे अधिक हो इससे यस। तो एक आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा ठीक है, क्योंकि या तो पेशेंट को जब डायग्नोसिस देनी है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। अच्छा, कई व्यक्ति कहेंगे यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो मालूम, ठीक है। अब आपने अब तक ABCD लिख लिया होगा, अब आप उसके उत्तर में डाल लीजिए। बात कोई भी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम इसमें कोडिंग करा पाते तो हम देखते कई लोगों ने उत्तर इसमें अलग अलग लगाए। तो यह ध्यान रखना है कि फास्टिंग 100 से कम और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद 140 से कम, 100 और 140 से कम वैल्यू हमारी नॉर्मल होती है। जो वैल्यू 100 और 140 से ज्यादा है वह असामान्य। देखिए, डायबिटीज हम तब कहते हैं जब फास्टिंग 126 और पोस्ट ग्लूकोज 200 से ज्यादा। तो 100 और 140 से कम सामान्य, 126 और 200 से ऊपर डायबिटीज, यह दोनों फिगर्स हमें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, जो सर्वमान्य हमारी संस्था है, वह यही कहती है कि फास्टिंग 100 से कम, आफ्टर ग्लूकोज लोड 140 से कम यह सामान्य, 126 और 200 से ऊपर डायबिटीज। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि इमरजेंसी में हमें रैंडम ग्लूकोज की जांच करनी पड़े, तो रैंडम ग्लूकोज के लिए मानक यही है कि अगर वो 200 से ऊपर हो रहा हो और क्लासिकल सिम्टम्स हो डायबिटीज के, व्यक्ति को बहुत भूख लग रही हो, बहुत प्यास लग रही हो, बहुत बार बार मूत्र त्याग करना पड़ रहा हो, उसका वजन कम हो रहा हो, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज के वो हो, जो कि अधिकांश व्यक्तियों में नहीं मिलते। लगभग 50% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कोई परेशानी ही नहीं होती। तो अगर परेशानियां भी हो रही हो और 200 से ऊपर का ग्लूकोज ले लो, तब भी हम कहेंगे डायबिटीज की संभावना। लेकिन इसको एक बार और हमें कंफर्म करना होगा, एक बार और देखना होगा कि यह वैल्यू इसके ऊपर ही आ रही है या नहीं। चलिए लौटते हैं अपने राम भक्त परिवार के। सब लोगों ने स्क्रीनिंग कराई। बाबूजी की वैल्यू आई 150-200, माता जी की आई 90-180, बेटे की आई 110-130 और बहू रानी की आई 90। ठीक है। अब हमें इन्होंने कहा कि डॉक्टर बताओ, आपने कहा देखो 100 से ज्यादा फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। अरे यहाँ तो 2 लोग फंस गए, 2 लोगों की फास्टिंग से 100 से ज्यादा है। 140 से ज्यादा आफ्टर ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 2 लोग फंस गए जिनमें जिनकी आफ्टर ग्लूकोज ज्यादा है। तो 4 में से 3 लोग निकल आए जिनकी ग्लूकोज वैल्यू में कुछ ना कुछ असामान्य था। वो कहेंगे डॉक्टर इसका मतलब बताओ ना। तो अब हम क्या कहें, हम कई बार जब चीजों को बहुत बारीकी से नहीं देखते तो हम उनको टाल से देते, तो भाई ध्यान रखना है, थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान रखना। अच्छा, हमारे यहाँ जो ध्यान रखने के पैरामीटर है बहुत अलग अलग। व्यक्ति को जब बहुत कुछ हो जाता है तो ध्यान रखता नहीं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है तो कौन ध्यान रखता। तो हमें थोड़ा प्रिसीजन के साथ उनको बताना है कि आपकी ये अवस्था है, अब आप इस तरफ जा रहे हो, आपको क्या करना है, वरना क्या हो जाए। इनको पहले सबसे पहले हम कहें कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखेंगे इनके लिए। तो अब आप ये बताएं कि इनमें से 4 लोगों के लिए यह रेशियो क्या है। ए बाबूजी, बी माताजी, सी बेटा, डी। इनमें आप किस किस को क्या कहेंगे। बहुत तो नॉर्मल है तो इसलिए ABC की बात करो।
आप किसको डायबिटीज कहेंगे, किसको आईजीटी, किसको आईएसडी, किसको प्री डायबिटीज, ए बी सी डी, इनमें आपका अपना उत्तर क्या है उसको अपने पेन पे नोट करिए, एक पेन से नोट करिए और फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि यह क्या है, सही उत्तर इसका क्या है। चलिए, तो अभी तक हमने समझा था एक नॉर्मल कैटेगरी है, एक डायबिटीज की कैटेगरी, लेकिन अब हमने जाना कि 100 और 126 के बीच में भी कुछ है, उसको भी देखना होगा। इसी तरह पोस्ट ग्लूकोज 140 और 200 के बीच में भी कुछ है, उसको देखना होगा। तो ये जो बीच की कैटेगरी है इसको हम कहते हैं, यदि फास्टिंग गड़बड़ हो तो इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज IFG, और यदि ग्लूकोज लोड के बाद इन दोनों के बीच में हो तो उसको कहते हैं IGT, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो यह बीच की कैटेगरी ग्रे की है, इसका मतलब व्यक्ति नॉर्मल भी नहीं रह गया और अभी डायबिटीज भी नहीं हुआ। यह है भारत और यह है पाकिस्तान। भारत की बाढ़ फंस गया है लेकिन पाकिस्तान की बाढ़ के अंदर नहीं घुसा है, अभी पकड़ के हमारे सैनिक खींच सकते हैं वापस। एक बार पाकिस्तान की बाढ़ के अंदर चला गया तो गया हमारे हाथ से। तो कहा जाता है वंस डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक। ये जो बीच का जोन है इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यहां से व्यक्ति को हम दोबारा नॉर्मल भारत की सीमा में ला सकते हैं। यह जो बीच का जोन है इसको पहले कहा जाता था प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज होने वाली है, और इसमें हमें इस प्री डायबिटीज में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यह जब हम उस पेशेंट को ध्यानपूर्वक समझाएंगे, जोर देकर समझाएंगे कि तुम नॉर्मल नहीं रह गए, तुम डायबिटीज की तरफ कदम बढ़ा चुके हो, अभी नहीं रोका तो डायबिटीज हो जाओगे, जीवन भर डायबिटिक रहोगे और फिर उसके बाद 20 तरह के और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अभी आपको सतर्क रहना है और यहां से वापस नॉर्मल की कैटेगरी में लौटना है। यह बात पे हमें एम्फेसिस देना है और आपको नंबर 1 अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। नंबर 2, समय समय पे टेस्ट करा के देखते रहना है कि हम कहाँ चल रहे हैं। केवल टेस्ट कराते रहे, नहीं अभी तो वही है, अरे अभी भी वही है, अरे किया क्या तुमने वापस आने के लिए, और फिर एक दिन डॉक्टर डायबिटीज हो गई अब इलाज करो, अरे तो तुम इंतजार कर रहे थे डायबिटीज होने का क्या। तो हमें डायबिटीज को होने से रोकना है। तो इस प्रकार से हम इनको ध्यान रखें, इस प्रकार से टेस्ट कराएं। टेस्ट को जब भी एक सिंगल एब्नॉर्मलिटी गड़बड़ हो तो भी कंफर्म करें, और जब हम इस प्रकार से पेशेंट को क्लियर कट डायग्नोसिस देते हैं तो हमारा भी उसमें जो जोर होता है वो ज्यादा होता है, और पेशेंट को भी तभी समझ में आता है कि हमें क्या और कैसे करना है। तो बाबूजी का 126 से ज्यादा है और 200 के बराबर है या 200 से ज्यादा, हमने डायबिटीज कहते हैं, जो फ्रैंक डायबिटीज हो गई। माता जी का हमने देखा फास्टिंग 100 से कम, ठीक है, लेकिन इनका ग्लूकोज लोड के बाद 140 से तो ऊपर चला गया लेकिन 200 नहीं पहुंचा। तो इनका ग्लूकोज लोड के बाद खराब है, तो ये इनकी डायग्नोसिस इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रही, जितना ग्लूकोज पिलाने के बाद उनको 140 से कम रखना था वो नहीं रख पाई, तो इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। बेटे का है फास्टिंग 100 से ज्यादा हो गई लेकिन आफ्टर ग्लूकोज 140 के अंदर, तो इनकी डायग्नोसिस क्या हुआ है, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज की फास्टिंग को शरीर नियंत्रण में नहीं कर पा रहा और बहुराने का सब कुछ नॉर्मल। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति डायबिटिक निकला और 2 जो पुरानी टर्मिनोलॉजी में है तो प्री डायबिटिक। तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज यही हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, ये जो चैप्टर है इस पुस्तक में MCH मैनुअल ऑफ डायबिटीज, उसमें इसी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है कि किस कैटेगरी में क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसको डायग्नोज करते हैं और उसके आगे इम्प्लीकेशंस क्या हैं, भविष्य में उससे क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। अब भारतीय महिला अपने पति के लिए बहुत बहुत चिंतित, बहुत सतर्क होती है। अब उसकी चिंता उत्पन्न हुई, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि हमारे पति को प्री डायबिटीज, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, आप कह रहे हैं कि इसकी संभावना डायबिटीज होने की भविष्य में ज्यादा है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो संभावना बताइए और दूसरी चीज क्या करना चाहिए।
क्या मुझे भी डायबिटीज हो सकती है मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ? चलिए आइए इस चीज को समझते हैं। हमारे भारतवर्ष में अब हम जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक पेशेंट्स जो डायबिटीज के हैं वो हमारे देश में हैं। और यहाँ पे जो हमारी सामान्य जनता में डायबिटीज की प्रेवलेंस 11-12% से लेके 16 से 18% तक देखी गई। तो लगभग हम ये कह सकते हैं हर 6-7 व्यक्ति में से एक को डायबिटीज। यह जो सामान्य जनता की बात, तो अगर हम बहू को की बात करें तो बहू को भी या हमें और आपको भी 12 से 18% डायबिटीज होने की संभावना है। अब अगर यदि एक पेरेंट को, माता या पिता को डायबिटीज हो, तब यह संभावना 2 से भी अधिक हो जाती है। तो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनमें डायबिटीज की संभावना काफी अधिक है। तो इसलिए नंबर एक तो हम लोग ये तो कहते हैं कि जनता में बीच बीच में डायबिटीज के कैंप लगा के उनमें टेस्ट करके देखते रहे कि उनको डायबिटीज है या नहीं। हमेशा अपने पेशेंट को गाइड करिए कि चलते फिरते ऐसे ही कभी भी मत आ जाओ, किसी एक अवस्था में आओ, खाली पेट आओ, या बेहतर होगा ग्लूकोज भी क्या हो, अगर नहीं है तो कम से कम भोजन करने के ठीक 2 घंटे पे आओ, जिससे हम कुछ आपको सही राय दे सके। मुफ्त की जांच बेकार में मत जाने दो, उससे भी मतलब निकालो। लेकिन यह तो हुआ 12 से 18% वालों को पकड़ देना। जो व्यक्ति आपके पास आ जाए, ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि उसको आगाह करें कि तुम्हारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कौन है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हमारा रक्त का संबंध है, हमारे ऊपर पहली पीढ़ी में माता पिता, हमारे पीढ़ी में भाई बहन, हमारे नीचे की पीढ़ी में बेटा बेटी। तो माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, यह जो 6 लोग हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, इनमें डायबिटीज होने की संभावना एक व्यक्ति को डायबिटीज होने पर 40% होती है। तो कम से कम हर डायबिटिक व्यक्ति की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की जांच अवश्य है। अब यदि एक व्यक्ति को डायबिटीज हो और दूसरे के माता पिता, जैसे माता को मैंने कहा डायबिटीज और पिता के पिता या माँ को डायबिटीज है, तब ये संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है। पर यदि माँ और पिता दोनों को डायबिटीज है तो व्यवहारिक तौर पर समझना चाहिए कि डायबिटीज उस व्यक्ति को होनी ही होनी है। जो फिगर्स है वो 80-20। तो जो मैं उसको कहता हूँ कि 100% डायबिटीज ये तो होनी ही होनी। तो आज अगर नहीं समझे तो कल हो। अब प्री डायबिटीज जो लोग हैं, जैसे अभी हम लोगों ने माता जी को और बेटे को समझा, एक को इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, एक को इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। तो इन प्री डायबिटीज में आप ये देखिए अगले 5 वर्षों में 25 से 37.5, मतलब 1/4 से 1/3 व्यक्ति 5 वर्षों में ही डायबिटिक हो जाएंगे। इनको रोकना बहुत आवश्यक है। इनको हमें जाने नहीं देना, इनको हमें ढीले नहीं पड़ने देना, क्योंकि यह तो हमें डायबिटीज सर पे आई खड़ी दिखाई दे रही है। तो इसलिए बहू जो चिंतित है उसकी चिंता जो है स्वाभाविक है। हमें उसे कहना है यस, अगर आज इस व्यक्ति को नहीं संभाला तो अगले 5 वर्षों में इसकी संभावना है कि यह डायबिटीज हो जाए। तो बाबू जी को तो डायबिटीज हो गई, अब माता जी को जिनकी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है 5 वर्षों में डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा, बेटा जिसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है इसकी संभावना बहुत ज्यादा। अब बहू का क्वेश्चन है मेरे लिए बिल्कुल बता दीजिए मुझे कितनी संभावना है। तो भाई 12 से 18% तो हम सबको है। अब निर्भर करता है कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स जो हमें मिले हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और या जो हमारे व्यवहार में है, उन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अब ये रिस्क फैक्टर समझाइए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें पति के लिए करना चाहिए, क्या हमें माता जी के लिए करना चाहिए जिससे डायबिटीज रोक सकें, और बाबू जी को डायबिटीज हो गई तो उनके डायबिटीज को ठीक कर सकें। यह वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज की संभावना को बढ़ाते हैं। एज हमारा कोई वश नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, हार्ट अटैक, इन सब की संभावना बढ़ती है। ठीक है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। आयु बढ़ेगी, डायबिटीज की संभावना बढ़ेगी, तो हम और सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। जेंडर कहा कि क्या पुरुष और महिला में भी कोई अंतर होता है? नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाइट, लंबे व्यक्ति छोटे व्यक्ति में कोई अंतर होता है? नहीं, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वेट बहुत बड़ा अंतर। जितना वजन बढ़ेगा
डायबिटीज की संभावना और जो दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की संभावना उतनी अधिक बढ़ती है। फैमिली हिस्ट्री की चर्चा हम लोगों की कि यदि किसी के माता पिता भाई बहन बेटा बेटी को डायबिटीज है तो उसमें संभावना ज्यादा होगी। डाइटरी हैबिट्स, खाओ पराठे मक्खन पान के, तो जो हम बहुत अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन जब करें, हम जितना परिश्रम, हमें कितना खाना चाहिए इसका कोई नियम नहीं, हम उतना भोजन करें जितना हम परिश्रम करते हैं, जितने भोजन को हम प्रयोग में ला सकते हैं उसको हम बैलेंस, नफा नुकसान बराबर, लाभ हानि बराबर, उसको जमा नहीं होने दें। कम होगा शरीर के लिए ठीक नहीं है, अधिक होगा वह भी ठीक नहीं। तो डाइटरी हैबिट्स में हमें अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन का चयन करते हुए उसको पर्याप्त मात्रा में लेना है और फिजिकल एक्टिविटी को पर्याप्त मात्रा में करना है, क्योंकि यह दोनों चीजें हमारी डायबिटीज की संभावना को बहुत प्रभावित करती हैं। हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस पास, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज पिलाने के बाद जो परिवर्तन हुए वह इन दोनों में, व्यक्तियों में, माताजी में और बेटे में, दोनों में अनियमित आए। तो ऐसे व्यक्तियों में हमें डायबिटीज के लिए रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा बढ़ गया। तो 3 फैक्टर, एज, वजन, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी फिजिकल एक्टिविटीज और हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, यह हमारे रिस्क फैक्टर बहुत बड़े हैं। और यह अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में इनके आधार पर एक कैलकुलेशन ये की गई, और जिस कैलकुलेशन को हमारे यहाँ भी डॉक्टर बी मोहन के सेंटर में इस तरह का एक चार्ट दिया गया, उसमें इनके आधार पर डायबिटीज की संभावना कैलकुलेट करने का भी सिस्टम है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए कि कुछ चीजों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है कि यदि हमारी आयु 60 वर्ष से अधिक, जो कि 60 वर्ष से अधिक होने पे देखा गया, अब तो हम देख रहे हैं 30-30 साल पे खूब डायबिटीज आयु बढ़ने के साथ बढ़ी। और दूसरा जो मुख्य प्रभाव है वजन, जितना वजन बढ़ता जाएगा डायबिटीज की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति को जो आपके पास दिखाने आ रहा है उसका चेहरा देखने से पहले उसका पेट देखिए, जिसका पेट निकला वो पोटेंशियल डायबिटिक है, उसको आगाह करिए। अब प्रश्न ये आता है कि जो आपने कहा डायबिटीज, मैंने गूगल माता की सर्च किया और ये देखा कि डायबिटीज तो कई प्रकार की होती है। भाई ये बाबूजी हैं, इनकी तो आयु अच्छी हो गई, ज्यादा हो गई। हमारे जो पतिदेव हैं इनकी आयु तो 20 वर्ष, इनको किस प्रकार की डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2? तो आप समझते हैं अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय पे आते हुए कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, अच्छा यह हमारे कुछ आवश्यक है कि हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़े कि आज 2024 में हम आयु के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते कि 40 वर्ष से बड़ा है तो टाइप 2 होगा, 40 वर्ष से छोटा है तो टाइप 1। यह बात फिर 1857 वाली है, जब डायबिटीज भी कम होती थी और अधिक उम्र के, अधिक आयु के व्यक्ति होती थी। आज तो 20 साल से भी हमें टाइप 2 डायबिटीज को मिलती है। टाइप 1 वो होती है जहां हमारा कसूर नहीं, जहां एक इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना, ऑटोइम्यून फिनोमेना है, उसने हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल को खराब किया और बीटा सेल ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, और ये एक इमरजेंसी के रूप में सामने आती है। तो ये जब सामने आती है तो हमें कुछ दिनों में या 1-2 सप्ताहों में मालूम पड़ जाता है। ये तो एक इमरजेंसी की तरह की चीज है जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो कि प्रकट हो ही जाती है, छुपी नहीं रहती। टाइप 2 डायबिटीज ये हमारे और आपकी हरकतों के कारण से काफी संभावना उनकी, जिसमें बहुत समय तक चुपचाप गुमनाम रहते हुए किसी छद्मवेश में आतंकवादी की तरह हमारे शरीर में पड़ी रहती है और अंदर ही अंदर रेकी करते हुए और किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है। तो टाइप 2 डायबिटीज है वो जो छुपी रहती है, जो इसका कारण क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंसुलिन शरीर में, इंसुलिन बनाने की क्षमता तो अच्छी होती है, लेकिन वह जो इंसुलिन बनी वो काम नहीं, वो काम नहीं आती तो शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है, ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है तो हमारा इंसुलिन रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाता है और हम कुछ समय में टाइप 1 डायबिटीज की तरह से आचरण करने लग जाते हैं। पहले कहा जाता था इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, लेकिन टाइप 2 वालों को भी तो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है एक समय के बाद।
पहले इसको कहा जाता था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी गलत है और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट कहना भी गलत है। कुछ रेयर फॉर्म स्पेसिफिक टाइप की डायबिटीज, लेकिन हम टाइप 1 टाइप 2 के बाद सीधे आपको ले जाना चाहेंगे जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज। जिन महिलाओं को गर्भावस्था में पहली बार डायबिटीज मालूम पड़ी उसे कहते हैं जीडीएम, और यह भी हमारे समाज में बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत महिलाओं को ये देखने को मिलती है। तो हमारे लिए जो बहुत आवश्यक है, यह तीन ग्रुप, इन तीन ग्रुप में भी टाइप 2 और जीडीएम, यह दोनों बड़े बड़े हैं। इनके प्रति हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये छुपे रहते हैं, ये छुपे रह सकते हैं, या प्रेगनेंसी में या हमारे वैसे ही स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। फिर बात आई कि जो पिताजी को डायबिटीज है, यह डायबिटीज कब से रही हो, इसके बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो बात हुई कुछ समय पहले भी हमने एक बार कराया था, एक कैंप में गए थे, रैंडम शुगर करा, लेकिन तो डॉक्टर ने कहा ठीक है रैंडम शुगर कराई, है ना, प्रॉपर तरह से नहीं कराई, और डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो ठीक है नहीं, कितनी है यह मालूम होनी चाहिए, किस परिस्थिति में कराई थी, कितनी है, उसका सामान्य वर्गीकरण क्या। तो अब कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे हम ये जान सके कि डायबिटीज कब हुई होगी। तो देखिए, बहुत पुरानी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ग्लूकोज की जांच करते हैं, ब्लड ग्लूकोज या प्लाज्मा ग्लूकोज हो, तो हमें उसी समय की घटना बता रही है। खाली पेट अलग होगा, 2 घंटे बाद अलग होगा। तो ग्लूकोज तो बहुत तेजी से घटता बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल, लेकिन कुछ और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो लंबे समय में अंतर डालते हैं, जिनमें एक बहुत विशिष्ट एक जो जांच है वो है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो यह हमारे पुस्तक का दूसरा अध्याय है, जिसमें हम यह वर्णन करते हैं कि लेबोरेटरी इवैल्यूएशन ऑफ डायबिटीज कैसे करें, और उसमें हमें क्या क्या बातों पर ध्यान रखते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म मार्कर ग्लूकोज हो गया, लॉन्ग टर्म मार्कर HbA1c हो गया, इनको समझ लेते हैं कि इनको आपस में हम किस प्रकार से दोनों की तुलना करें। तो हाइपरग्लाइसीमिया तो हमने समझा कि फास्टिंग कराते हैं, पीपी कराते हैं, या पोस्ट ग्लूकोज कराते हैं, और रैंडम कराते हैं। लेकिन जो HbA1c है, HbA1c इनसे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज समय के अनुसार कितना, भोजन के अनुसार और दवा के अनुसार, तो फास्टिंग अलग होगा, पीपी अलग होगा, भोजन के 1 घंटे 2 घंटे पे अलग होगा, 4-5 घंटे पे अलग होगा। अगर हम डायबिटिक हैं, हम दवा खा चुके करा रहे हैं तो अलग होगा, दवा बिना खाए करा रहे हैं तो अलग होगा। तो एक भी इनमें से फैक्टर को हमने कम ज्यादा किया, ग्लूकोज वैल्यू बदल जाएगी। पेशेंट आके अक्सर लड़ते हैं कि कल हमने ग्लूकोमीटर में देखा था वो इतनी आई, आज लैब में गए इतनी आई, पता नहीं कौन सी सही है। तो हमें अगर कभी किसी चीज का संशय हो तो हम एक ही समय पे लैब और ग्लूकोमीटर की दोनों की जांच कराएं, एक ही ब्लड सैंपल से, तब हमें उसको आपस में कंपेयर करना चाहिए। कल इतनी थी और आज इतनी, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अगर इनमें से फैक्टर अलग हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल या प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल वह बदल जाए। तो अब यहाँ पे फिर एक क्लू क्या आया हमारे लिए कि जब हम अपने पेशेंट को जांच कराने को कह रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंट जाता है लैब में खड़ा होता है, तो लैब वाले जो बड़े स्मार्ट है ना, वो अपने आप को डॉक्टर का पिता पितामह समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं, गोली खा के आए हो, तो गोली खा के थोड़ी जाते हैं, उससे कैसे मतलब चलेगा तुम्हें डायबिटीज है, कल गोली मत खाना फिर जांच करेंगे, तो कर दिया गड़बड़। हमें डायबिटिक व्यक्ति की जांच कराते समय यह देखना है कि जो हम दवा दे रहे हैं उस दवा पर उसका नियंत्रण कैसा। हमें यह नहीं देखना कि वो व्यक्ति डायबिटिक था, डायबिटीज ठीक हो गई क्या, वो तो होती है। तो हमें नियंत्रण देखना है, मतलब सब्जी में जितना मसाला डाला उसके बाद सब्जी में स्वाद आया नहीं आया, या हम उसको कुछ घटाया बढ़ाए, बिना मसाला डाले सब्जी थोड़ी चखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे इस व्यक्ति की जो जांच किसी भी व्यक्ति कराएंगे तो रोजमर्रा जो खाते हैं वही लोगों को राय क्या दी जाती है, थोड़ा मीठा खा के कराना जाना, नहीं वो सही तरीका नहीं है। लोगों को ये राय दी जाती है बिना दवा खाए कराना,
नहीं, ये भी सही का तरीका नहीं है। जिस दिन जांच करा रहे हो उस दिन एक्सरसाइज नहीं करना ना, जो रोज कर रहे हैं हमें उसी दिनचर्या पे आपके नियंत्रण को पहचानना है। तो वही भोजन, वही व्यायाम, वही दवाएं और वही समय के आधार पे हम जांच कराएंगे, तब हम ग्लूकोज लेवल को सही प्रकार से उसकी तुलना कर सकेंगे, उससे कोई निर्धारण कर सकेंगे, नियंत्रण। अब जो दूसरी जांच है HbA1c, इसको जरूर समझिए। HbA1c पिछले 3 से 4 महीनों का एक औसत नियंत्रण की एक जानकारी देती है। इनमें भी जो 50% योगदान होता है वह होता है पिछले महीने का। आज हमने जांच कराई 28 जनवरी, तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच के एक महीने में जो गड़बड़ी हुई उसका योगदान 50% है। 28 दिसंबर से 28 नवंबर, उसके एक महीने पहले का जो योगदान है वो 25% है, और 28 नवंबर के पहले का योगदान 25%। तो इस HbA1c में भी जो पिछले महीने का योगदान है वो सबसे ज्यादा होता है। 3 महीने का ये लगभग नियंत्रण बताता है। तो अब HbA1c से हम ये जान सकते हैं कि कम से कम 3 महीने में शुगर का औसत स्तर कैसा रहा। इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता कि किस समय कराया, भोजन किया था नहीं किया था, हमने दवा खाई थी नहीं खाई थी, क्योंकि ये जो 3 महीने का एक एवरेज है। तो यह जांच ऐसे में ये पहचानने में मदद कर देती है जब हमारे पास किसी चीज का कोई ये उपलब्ध ना हो, पेशेंट कभी भी आ गया और हमने तो कोई जांच कराई नहीं आज तक है, बहुत 6 महीने से हमने कोई टेस्ट ही नहीं किया, तब हमें एक औसत अनुमान बता सकते हैं HbA1c। औसत बताता है, यह कोई बहुत अच्छी जानकारी भी हम कहें नहीं देता। जैसे बच्चे के कितने नंबर आए, भैया 75%। अब 75% आए तो हम ये भी तो जानना है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास में कितने कितने नंबर, तभी तो पढ़ाएंगे उसे। केवल 75 नंबर बता के मास्टर की पढ़ा दो उसे, मास्टर की क्या पढ़ाए। इसी तरह हमें आपने केवल HbA1c बता दी कि 7% है। अब 7% में मुझे फास्टिंग अलग चाहिए, पीटी अलग चाहिए, पीटी में भी नाश्ते के बाद अलग चाहिए, दोपहर भोजन के बाद अलग चाहिए, जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकें कि व्यक्ति को किस समय कौन सी और कितनी दवा दें, जिससे कि वो 7% को हम 6.5% ला सकें। तो दोनों को हमें जानना और दोनों की जांच को साथ साथ एक दूसरे से मिलाकर देखना वह आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं। अब हम एक बार आपसे फिर से, ये बाबूजी की जो जांच आई है 150 और 200, यह तो फास्टिंग और पोस्ट ग्लूकोज की। अब बहुरानी गई, उनकी HbA1c करा लें। डॉक्टर साहब आप तो हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये देखिए कह रहे हैं डायबिटिक है, आपकी मशीन ही खराब है। देखिए HbA1c तो 5.5 आया, HbA1c की रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब आप क्या कहेंगे? अब हमारे ऊपर उंगली उठेगी, हमें इसका उत्तर देना है कि ये अब हम कहेंगे यार अब ये सही है, ये सही है। ऐसे में हम क्या कहते हैं, भैया लैब हमारी गलत, यहाँ से तुमने कराया था लैब खराब थी, एक अच्छी वाली लैब से और फिर फास्टिंग और आफ्टर ग्लूकोज फिर से करा। लैब गलत कहने से पहले हमको इस चीज को एनालाइज करके देखना है कि ऐसा तो नहीं हम नहीं समझ पा रहे। अब हम आपसे पहले क्या करें, पहली चीज हम इस व्यक्ति को दोबारा बाबूजी को डायबिटिक कहें या ना। अब आप लोग अपना आंसर नोट करके देखिए, ए के साथ जा रहे हैं या बी के साथ। आप यस कह रहे हैं डायबिटिक या कह रहे हैं नो डायबिटीज नहीं। वास्तव में बाबूजी को डायबिटीज तो है। हम ये मान के कि 2 बार की गई जांच, एक जांच गलत हो या फिर दूसरी भी बड़ी हुई है, 2 बार की गई जांच हमारी गलत नहीं बोल रही, तो HbA1c 5.5 है, इसको कैसे जवाब दें? इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वह हमें समझ नहीं। तो एक तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में अब हमारा फास्टिंग और ग्लूकोज रैंडम के साथ एक लाइन और जुड़ गई HbA1c। नॉर्मल HbA1c 5.7 से कम होती है, जब वो 6% के ऊपर बढ़ने लग जाती है तो उसको हम प्री डायबिटीज या IFG कहते हैं। जब वो 6.5 के ऊपर हो जाती है तब उसे फ्रैंक डायबिटीज। तो एक तो यह क्लासिफिकेशन में एक चैप्टर और बढ़ा, लेकिन ऐसा कब होगा
जब हमारी HbA1c नॉर्मल हो और फास्टिंग बीपी नॉर्मल ना हो। आप अपने मन में सोचिए कि आप इसका उत्तर क्या देंगे, क्योंकि अब जो बहू है वो आपसे पूछ रही है, आप कह रहे हैं शुगर ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। आपके पास क्या जवाब है वास्तव में? अब हम देखिए, फास्टिंग और बीपी तो हमारी इंस्टेंटेनियस रिजल्ट बता रही है आज अभी इसी समय का, और HbA1c बता रही है 3 महीने। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कंट्रोल तो ठीक है। नहीं, गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ में कर ही देता। शॉर्ट टर्म कंट्रोल जो फास्टिंग बीपी, ओके सॉरी फिर से रेज कर रहा हूँ, हम इनके संबंध को फिर करेंगे। मैं समझा वही पेशेंट करेंगे, ये एक अलग, अगर हम संबंध यहाँ पे समझ रहे हैं, फास्टिंग बीपी 90/120 है, ठीक। HbA1c 5.5 है, ठीक। ये दोनों परिस्थितियां ठीक है। मतलब इस व्यक्ति को ऐसी रिपोर्ट के साथ आता है तो शॉर्ट टर्म भी ठीक है, लॉन्ग टर्म भी ठीक है, इसका मतलब वह व्यक्ति ठीक है। अगर कोई जैसे इस रिपोर्ट के साथ आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म कंट्रोल खराब है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल 6.5 से ज्यादा खराब है या 6% से ज्यादा खराब है। तो इसका मतलब चीज अभी भी और लंबे समय से बिगड़ेगी। अब आए हमारे बाबूजी, इसका अर्थ क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कंट्रोल गड़बड़, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ठीक है। इसका मतलब अभी जरा कुछ बदमाशी चल रही है, अभी ठंड के दिनों में पराठे मक्खन लगा के चल रहे हैं, खूब मूंगफली चल रही है, खूब गजक रेवड़ी चल रही है, खूब गाजर का हलवा चल रहा है, तो जिसके कारण से उन्होंने अभी हाल में अपनी चीज को खराब किया है, जिससे HbA1c पे अभी उतना प्रभाव नहीं आया, लेकिन HbA1c पे प्रभाव आने में अभी कुछ समय लग रहा है। शुगर खराब हो गई, ग्लूकोज खराब हो गया शुगर में, जो पिछले 2-3-4 दिनों में कुछ और भी ज्यादा इन्होंने खराबियां की। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे। एक संभावना यह भी हो सकती है कि आज पेशेंट आया, उसकी शुगर ठीक है, ग्लूकोज लेवल ठीक है, लेकिन HbA1c खराब है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा था, लेकिन आने से पहले उसने कहा डॉक्टर साहब को दिखाने जाना। अच्छा, ऐसे स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, 3 महीने खूब मौज करते हैं, और जब दिखाने आना होता है तो 2-3-4 दिन से वो सारा दवा का डब्बा निकालो, और जरा दवा ठीक से खा के और थोड़े दिन परहेज वरहेज करके थोड़ा टहल करके रिपोर्ट अपने ग्लूकोमीटर की ठीक लेके पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने कहा बेटा तुम्हारी HbA1c देखते हैं, HbA1c 8.5, मतलब हमें मिल जाए तो उल्लू बनाने, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। आज हमको तुम चीजें सुधार के जो दिखा रहे हो, वास्तव की स्थिति वो नहीं है। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति को यह पहचान सकते हैं एक सीमा तक कि उसके नियंत्रण की स्थिति क्या है आजकल में या आज के बाद की स्थिति। तो मित्रों, ये एक आरंभिक जानकारी थी जो डायबिटीज से संबंधित हम इसमें अभी कर रहे थे कि डायबिटीज को किस प्रकार से हम डायग्नोज करें, किस प्रकार से क्लासिफाई करें, किस प्रकार से उसके जो आगामी परिणाम हैं उनकी संभावनाओं को पहचानें, और किस प्रकार से हमें इन चीजों को, जो हम ये सारी बातें 2-3 या अधिक से अधिक 4 स्लाइड्स में कवर हो सकती है, और हमारी कॉन्फ्रेंसेस भी 4 स्लाइड में कवर कर दी जाती है। लेकिन जो इनकी बारीक पहलुओं पर हमें विचार करना है, जो इसको एक एक जो इस्तेमाल में हमें किसमें लाना है, इसके लिए इसको विस्तार से चर्चा करके हम ये चाहते हैं कि हमारा एक कार्य हो क्लिनिक में, वह विधि सम्मत हो, वह जो रिकमेंडेशन है उनके अनुकूल। तो यह अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में लिख के इससे शेयर करिए, और अगर कोई प्रश्न आए हो तो डॉक्टर साहब वो शेयर करें, थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लिया मैंने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टॉक। आई थिंक इससे सरल और ल्यूसिड तरीके से इतने कठिन विषय को समझाना और किसी के लिए संभव नहीं होगा।
So I compliment you that, sir. And we have few questions which we have received from the audience. So the first question is कि ग्लूकोमीटर से जो हम रीडिंग लेते हैं, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है? जो भी हमारे साथ हमें अपने पेशेंट की जांच करानी है, हर विधि में कोई भी चीज पूरी तरह से 100% आइडियल नहीं हो सकती। तो लैब की जांच को हमेशा आदर्श जांच माना जाता है। लैब से हम वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज की जांच करते हैं और जीओडी पीओडी जो आजकल का मॉडर्न मेथड है उससे जांच होती है। तो लैब की जांच आदर्श जांच है। उसके अतिरिक्त जितनी भी जांचें हैं सब वो थोड़ा थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे आधारित कि हर बार जाएं लैब तक जाएं वहां पे जांच कराएं फिर एक दिन बाद रिपोर्ट लें। इसके बिना हम कुछ ऐसा करें कि फटाफट हमें मालूम पड़ जाए, बिना आए जाए मालूम पड़ जाए। तो हमने एक छोटे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसका नाम रखा ग्लूकोमीटर और उसमें हम वीनस ब्लड ना लेके कैपिलरी ब्लड ले रहे हैं। उसमें हम ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके प्लाज्मा की जांच ना करके होल ब्लड की जांच कर रहे हैं। तो एक तो अंतर ये आ गया कि लैब की शुगर में प्लाज्मा ग्लूकोज और वीनस प्लाज्मा ग्लूकोज और ग्लूकोमीटर में हमारा कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज की जांच। तो ये दोनों चीजें आपस में कंपेयर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? यहां से ब्लड आया ग्लूकोज लेता हुआ, वो जब कैपिलरी से गुजर रहा है तो कैपिलरी से सारे टिश्यूज उसमें से ग्लूकोज निकाल रहे हैं। तो जो कैपिलरी ग्लूकोज है वह अभी ग्लूकोज निकलनी शुरू हुई है। जब तक वो वेनस में जाएगा तो काफी ग्लूकोज इस हाथ के टिश्यूज के द्वारा निकाला जा चुका होगा। तो एक बात तो ये हुई कि कैपिलरी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, वेनस में वेनस ब्लड में ग्लूकोज कम होगा। दूसरी बात, जब हमने यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज दिया तो ब्लड इज 100%। तो जब यहाँ से उस ब्लड में से प्लाज्मा निकाला तो प्लाज्मा जो उसमें से निकला वो है 55%। तो यहाँ तो 100% पे जितनी ग्लूकोज की वैल्यू थी, जब उसमें से 45% सेल्स निकाल देंगे, 55% प्लाज्मा में उसकी जांच करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ब्लड ग्लूकोज में वैल्यू कम और प्लाज्मा ग्लूकोज में वैल्यू अधिक होती है, लेकिन कैपिलरी में वैल्यू अधिक और वेनस में कम होती है। तो इन सब चीजों को जब पैरामीटर्स को सबको आपस में कंपेयर करके और एक दूसरे का प्रभाव को निगेट करने के बाद जब हम निकालते हैं तब वो अंतर आता है दोनों के बीच का। और ग्लूकोमीटर इस अंतर को ऑटो करेक्ट करके उसी के हिसाब से कैलिब्रेटेड होता है। तो वह कैपिलरी ब्लड की ग्लूकोज की वैल्यू को वेनस प्लाज्मा ग्लूकोज के हिसाब से ऑटो करेक्ट करके कैलिब्रेट करके तब वह बता। तो हम लोग में से कई बार हम लोग और कई बार हमारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम ग्लूकोमीटर में जो वैल्यू करते हैं ना उसमें 15 जोड़ देते हैं। कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं, जो आ रही है वही, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड है, वो ऑटो करेक्टेड है, उसी पे काम करना है। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत बहुत अंतर होते हैं। 10% का अंतर, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वह 7 to 10% होता है। वह तो हम मान के चल सकते हैं, उससे कोई बहुत अंतर नहीं। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि 10% क्या 15-15, 20-20% भी होता है, तो वह मजबूरी है। दोनों को जब कंपेयर करना हो तो जाइए लैब में जाइए, रिलायबल लैब होनी चाहिए। अगर लैब रिलायबल है तो हम लैब पे विश्वास करेंगे, अगर लैब फिट लिया है तो हम ग्लूकोमीटर पे विश्वास करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, लैब पे जाइए, लैब में ब्लड निकलवाइए, वही ब्लड की एक बूंद ग्लूकोमीटर पे डाल दीजिए और फिर देखिए कितना दोनों में अंतर है। तब हम उस अंतर को अंतर मानेंगे और 10% तक का अंतर हमारा वह एक्सेप्टेबल है। 10% से ज्यादा अंतर है तो एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या है। लेकिन फिर भी मजबूरी, तो हम रोज रोज जाके लैब में नहीं करा सकते अधिकांश लोग। तो इसलिए हम कहते हैं ग्लूकोमीटर से तब भी आप नापते ग्लूकोमीटर से रहिए, बीच बीच में उसको करा के वेरिएशन देख लीजिए। यहाँ पे एक बात फिर मैं कहूँ कि फास्टिंग ग्लूकोज में जो वेरिएशन कम होता है, पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज में वेरिएशन ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज आया, ज्यादा निकाला गया, यहाँ पहुंचते पहुंचते कम है। तो पोस्ट प्रांडियल पीटी ग्लूकोज में वेरिएशन ज्यादा होता है। टेस्ट जब भी कैलिब्रेट दोनों को करना है तो फास्टिंग ग्लूकोज में करें।
जो वैल्यू आ रही है उसी को लेके चलिए, एक्सेप्टेबल, जब तक कि हम ये ना कहें कि वो इतनी इरेटिक है कि ग्लूकोमीटर बदलना पड़ेगा। ग्लूकोमीटर बदलने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखें। ग्लूकोमीटर की बैटरी, जब बैटरी हमारी डाउन होने पे आती है तो बहुत गड़बड़, बहुत खेला हो गया। हाँ, तो इसलिए ग्लूकोमीटर की बैटरी का इंडिकेशन देख लीजिए, कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। नंबर 2, पुराने ग्लूकोमीटर्स में तो मौसम का बहुत अंतर होता है। ठंड में वैल्यू बहुत कम देते थे। एक उस चीज पे विचार करिए। एक कभी कभी कोई हमने लैंप लगा रखा है, उसके नीचे रख के देख रहे हैं, तो जो लैंप की लाइट सीधी पड़ रही है, वह उसमें क्या होता है, फोटोमेट्री पे आधारित नहीं है। तो लैंप की लाइट पड़ रही है, वो सीधी तेज रोशनी के नीचे हम देख रहे हैं, तो वह भी हमारी इस रीडिंग को अफेक्ट करती है। तो इन बातों पे, स्ट्रिप्स हमारी एक्सपायर तो नहीं करनी, इन बातों पे ध्यान अवश्य दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर द रिस्पॉन्स। वी हैव अ क्वेश्चन कि स्क्रीनिंग अगर हम बात करते हैं तो किन पेशेंट्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए? और बढ़िया। हाँ, ये वाली चीज मुझे और इंक्लूड करनी चाहिए थी। वैसे हमारी पुस्तक में जो शायद जो चैप्टर 1B है, वो पूरा इसी के ऊपर है कि हम किनको स्क्रीन करें। 2 विधियां हैं। एक है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। तो हमें और आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करनी, वो सरकार का दायित्व है। वह कहती है कि पूरी इस क्षेत्र की पूरी जनता को टेस्ट करो, सबकी होनी चाहिए। वो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया अलग है। हमारे आपके पास व्यक्ति सीधे आता है, तो हमें इंडिविजुअल स्क्रीनिंग की बात हमारे लिए हो जाती है। तो सरकार तो ये कहती है, या जब हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में काम करना हो तो कहा जाता है कि 30 वर्ष से बड़े प्रत्येक भारतीय का टेस्ट होना चाहिए। मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अमेरिकन का इलाज नहीं करने जा रहे। तो 30 वर्ष से बड़े, जो कि बाहर की दूसरी कंट्रीज में 40 वर्ष की आयु होती है, भारतीयों में 30 वर्ष से बड़े प्रत्येक भारतीय का की टेस्टिंग करनी है, एक बात। दूसरी चीज, उस व्यक्ति की अवश्य करनी है जिसको दूसरे रिस्क फैक्टर्स में, क्या, ओबेसिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया या हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, या फैटी डाइट, या फिजिकल इनएक्टिविटी वाले, या जो वह रोग जो डायबिटीज की संभावना को बढ़ाते हैं, जैसे पीसीओडी वाले। पीसीओडी महिलाओं को है उनको। तो इन लोगों में हमें डायबिटीज के लिए स्क्रीन अवश्य करना है, क्योंकि इनमें संभावना अधिक होती है। और एक रह गया फर्स्ट डिग्री रिलेटेड, जिसकी हमने चर्चा राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। एक सर एक एक पूरा कर दो। ये तो हो गया पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग। अब आई इंडिविजुअल स्क्रीनिंग। इंडिविजुअल स्क्रीनिंग में कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग के साथ आ रहा है, अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो हमें उसकी ग्लूकोज की जांच अवश्य करके देखनी ही देखनी है, क्योंकि कोई इंफेक्शन लेके आया, उसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकती है, और डायबिटीज जो अंडरलाइन है वो फ्लेयर अप भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल स्क्रीनिंग में हमें थोड़ा और लिबर्टी ले सकते हैं। हम 30 वर्ष से कम आयु में भी अगर हम रिस्क फैक्टर्स देख रहे हैं, बच्चे में भी रिस्क फैक्टर देख रहे हैं, बच्चे भी आजकल खूब ओबीज होते हैं, उनमें मार्कर्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, तो उन लोगों में भी हमें, और किसी भी मेडिकल इलनेस के दौरान हमें यह जांच अवश्य करनी है। तो हमें अपने जो विजन है हमारा, वो बहुत ब्रॉड रखना है, क्योंकि डायबिटीज कहीं भी किसी के साथ एसोसिएटेड मिल सकती है, तो इसको स्क्रीन करने में मत हिचकिचाइए। जी सर, क्योंकि हम ग्लूकोमीटर की बात कर रहे थे, एक प्रश्न आया है कि ग्लूकोमीटर क्या 8 डिग्री से नीचे अगर तापमान हो रूम का, क्या उसके नीचे कार्य नहीं करते ठीक से, ऐसा? बिल्कुल, ये वाली बात सही है जो मैं आपसे पहले कहता था कि कई ग्लूकोमीटर्स में ठंड में वो रीडिंग गलत देते हैं। अब देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, यह आदर्श परिस्थितियों में सब टेस्ट होती है। जैसे कंप्यूटर के लिए भी कहा जाता है कि आप लैपटॉप को इन सबको चलाएं तो हमेशा एसी वाले एटमॉस्फेयर में चलाएं। हमारे यहाँ 45 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें वो गड़बड़ कर सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कईयों के साथ में यह बात सत्य है। तो यह बात ग्लूकोमीटर में भी कुछ सीमा तक वो सही है। हम देखते हैं कि काम अधिकतर चल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी चलता। तो राइट। किया जाए ये कहना मुश्किल है। We have a question which is a practical scenario. एक पेशेंट का HbA1c लेवल 8.2 है, फास्टिंग ग्लूकोज 170 है,
पोस्ट प्रांडियल 190 है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर कंट्रोलिंग HbA1c और द ग्लूकोज लेवल? दैट इज द क्वेश्चन। सब कुछ आज ही बता देंगे तो अगले सेशन में क्या करेंगे। राइट सर। सो ये हम अगले मॉड्यूल्स में कवर हाँ मैंने करेंगे सर, बिल्कुल कवर करेंगे। और इन प्रश्नों को हम तब लें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिमिलरली एक और प्रश्न भी प्रैक्टिकल सिनेरियो पे है, तो वो मैं उसको नहीं ले रहा हूं सर। एक प्रश्न डाइट पे है कि LDCF जो लो डेंसिटी इन फैट डाइट होती है, वो मतलब हमसे शेयर की जाए। वो बड़ी मतलब वी वांट टू शेयर इट विद द पेशेंट्स। उसके बारे में कुछ बताएं सर। ठीक है। जो कहा जाता है डायबिटीज के उपचार का जो मूल बिंदु है वह है हमारी जीवन शैली में परिवर्तन। लेकिन ना दुर्भाग्य से ना हम उस पर उतना जोर देते और ना हमारे जो जनता है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वह उस पर उतना ज्यादा सतर्क है। तो यह एक दुर्भाग्य ही है कि जीवन शैली जो सबसे आवश्यक है उस पर सबसे कम ध्यान दिया और दिया जाता है। पेशेंट आया, हमने सीधे दवा दे दी, उसने भी गया सीधे दवा खा ली और सोचा सारा काम हो गया। और जो नहीं हुआ उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार कि तुम तो हमारी शुगर ही कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हमें जीवन शैली पे बहुत ध्यान देना। उसके दो मूल बिंदु। हमारा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी। तो वजन, टाइप 2 डायबिटीज की हम बात करेंगे, टाइप 1 की नहीं करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह हमें वजन का ध्यान रखना, वजन में भी एक्स्ट्रा फैट का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैट में भी एब्डोमिनल फैट का ध्यान। तो इन बातों पे हमें सतर्क रहना है। और जितना हम उस फैट की मात्रा को कम करते जाते हैं उतना हमारी इंसुलिन, फैट क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है। और फैट को कम करके हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे शरीर में इतनी इंसुलिन बन रही थी, लेकिन फैट अधिक होने के कारण से, चाहे भोजन में फैट अधिक हो चाहे शरीर में फैट अधिक हो, वह इंसुलिन कार्य नहीं कर रही थी। वो कार्य इतनी के बराबर कर। जैसे जैसे हमने अपनी डाइट में फैट कम किया, जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई, जैसे जैसे शरीर का फैट कम हुआ, यह इंसुलिन का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो जितनी इंसुलिन बन रही है वो काम पर्याप्त रूप से कर पाएंगे। तो हमारे डायबिटीज का केंद्र बिंदु फैट। यह बात हमें पुरानी जो हमारी धारणा है, हर केवल आलू चावल चीनी तक अपने आप को सीमित रखते हैं, हमारे एक फ्लो में आ गया है। आलू चावल चीनी का बर्थडे खत्म, पूरी डाइट हो गई। डायबिटीज में व्यक्ति की मृत्यु किससे होती है? डायबिटीज से तो कोई नहीं मरता। वो मरते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेल, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इनसे। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वह किससे बढ़ते हैं? कोलेस्ट्रॉल से, वह हाइपरटेंशन से। तो हमारे डायबिटीज में भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ज्यादा है वैस्कुलर। इसीलिए हम कहते हैं डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना होकर वैस्कुलर डिसऑर्डर। तो वैस्कुलर डिसऑर्डर को बचाओ। उसमें जो सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तंबाकू। एक चीज यदि हमें जो त्यागनी है वह है तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, पान, खैनी, किसी भी चीज में। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है घी तेल चिकनाई, क्योंकि कैलोरी रिच होने के कारण वह थोड़े में भी बहुत अधिक कैलोरी देते हैं। ग्लूकोज से 4 कैलोरी पर ग्राम, फैट से 9 कैलोरी पर ग्राम। तो वह हमारी जो कैलोरी इंटेक बढ़ा देते हैं। अच्छा, रोटी आप खाओगे तो 2 खाओगे और पराठा अच्छा लगेगा तो 3 खाओगे। तो जो ऑयली फैटी क्रीमी बटरी चीजें वो अच्छी लगती हैं, तो वो ओवर ईटिंग की संभावना उसमें ज्यादा होती है। कैलोरी भी ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा करती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को भी बढ़ाती हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की संभावना बढ़ा के और वो हमको आईसीयू पहुंचा सकती है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन तंबाकू का, दूसरा रेस्ट्रिक्शन चिकनाई का। फिर आए हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एक हुआ चीनी, गुड़, और दूसरा हुआ जो हमारे अनाज में स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनका। तो चीनी और गुड़ जो है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। खाया तुरंत रेडीमेड कार्बोहाइड्रेट, रेडीमेड उसने ग्लूकोज निकाले, ग्लूकोज लेवल पर। जो हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन है, जो एनिमल प्रोडक्ट है ग्लाइकोजन और प्लांट प्रोडक्ट है स्टार्च, इन दोनों से
यह टूटेंगे तब ग्लूकोज बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लंबे समय तक बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, कि डायरेक्ट शुगर्स नहीं लेनी। लोगों ने कहा था चीनी ना खा के गुड़ खा सकते हैं। हाँ ठीक है, चीनी क्या है? गुड़ का रिफाइंड। 1 किलो गुड़, उसको रिफाइन करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कितनी, लेकिन अंदाज से मैं कह रहा हूँ चलो आधा किलो चीनी, 1 किलो गुड़ से आधा किलो चीनी बनी। तो इसका मतलब गुड़ में चीनी के आधा 50% तत्व है। जो ग्लूकोज लेवल बढ़ना है वह गुड़ से, शुगर जो चीनी के मुकाबले 50% बढ़ेगा। बात वही हो गई। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट शुगर्स को अवॉइड करके हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे आना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर जोड़ दें तो उससे ग्लूकोज की रिलीज और कम हो जाएगी। तो हमने चावल खाए, चावल का माड़ निकाल दिया तो स्टार्च कम हो गया। हमने चावल खाए, चावल के साथ में सब्जी कम से कम तेल में बनी हुई और सलाद, इनकी मात्रा बढ़ा दी तो उससे ग्लूकोज की रिलीज और धीरे होगी। जिन चीजों में ओवर ईटिंग की संभावना होती है उनको हम पहले ले लें। तो अगर हमें चावल खाने हैं तो हम रोटी से पहले चावल खा लें। चावल पहले खा लेंगे तो वो पेट को भरने में मदद करता है। तो पहले हमने चावल लिए, फिर हमने रोटी ली। तो अब रोटी ज्यादा नहीं खाई जाएगी। जब हम रोटी पेट भर खा के तब चावल लेते हैं तो ओवर ईटिंग होगी। सब्जी की मात्रा खूब रखें, दाल बिना तड़के की लें, तो जिससे घी की चिकनाई कम हो गया। रोटी पे घी ना लगाए, पराठा पूरी पे फली ना बनाए। दूध की मलाई उतार दें, उसी का दूध दही मक्खन इस्तेमाल करें। नॉनवेज की जितनी चीजें हैं सब फैट रिच है। रेड मीट है वो तो फैट से भरा हुआ, पकाने में हम उसको तल के और भून के जो तेल डाल डाल के करते हैं वो और रिच कर देते हैं। तो हमें रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है। व्हाइट मीट चिकन और फिश के रूप में बिना तली हुई, बिना घी डाल के रोस्ट की हुई, केवल बॉइल्ड फॉर्म में हम कभी कभी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें अपना फैट खूब होता है, ऑयल खूब होता है। एग लेना है तो एग का व्हाइट लिया जा सकता है, येलो नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल रिच है पूरा, उनको अवॉइड करें। तो इस प्रकार से हम अपने भोजन में कैलोरी कंटेंट, कुकिंग ऑयल को जितना कम करते जाएं, कुकिंग ऑयल चाहे कोई भी हो उसकी मात्रा जितनी कम करते जाएं, सिंपल शुगर्स को हटाते जाएं, कॉम्प्लेक्स रोटी दाल चावल सब्जी फल मलाई रबर दूध अंडे की सफेदी, इन चीजों को लें और व्यायाम नियमित रूप से करें। इससे हमारा डायबिटीज का नियंत्रण बहुत सरल हो जाता है। और केवल डायबिटीज नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटी। तो मैं तो पेशेंट से क्या कहता हूं, अगर इनको हटाया तो तुमने अपना आईसीयू एडमिशन बचाने का काम कर रहे हो। केवल ग्लूकोज कम करते रहोगे लेकिन नहीं पहुंच पाओगे। सर एक सवाल आया है कि पेशेंट ब्लड टेस्ट कराने गया है तो क्या फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल एक ही दिन कराना अनिवार्य है? नहीं, जो हमारी पहली बार स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए कि आज हमने फास्टिंग कराई, 1 सप्ताह बाद पोस्ट ग्लूकोज कराई। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा उसी दिन या उसके अगले दिन हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति डायबिटिक है, तो डायबिटिक होने के बाद जब उस व्यक्ति को हम आगे टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर ये रहता है, मैं तो अपने पेशेंट्स को ये राय देता हूँ, एक बार एक टेस्ट, अगली बार दूसरा, अगली बार तीसरा। एक बार खाली पेट, एक बार नाश्ता आरंभ करने के 2 घंटे बाद, एक बार दोपहर भोजन के 2 घंटे बाद, और जिसमें आवश्यक हो उसमें कहा रात में भोजन आरंभ करने के 2 घंटे बाद। तो अलग अलग समय पे अलग अलग समय की ग्लूकोज लेवल देखते रहें, जिससे कि हम ये निर्धारण कर पाए कि हमारा पेशेंट की पूरी दिनचर्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ग्लाइसेमिक स्टेटस। Right, so we have no more questions as of now, the relevant questions, because some questions are on the treatment. I think we should not take those questions right now because you will talk about the treatment in subsequent modules. मैं अगले मॉड्यूल की चर्चा अभी कर दूं। अगला मॉड्यूल आज का तो प्राइमर था, अगला मॉड्यूल जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो हम कहीं सुनते पढ़ते नहीं। हमें अपने पेशेंट के लिए ड्रग को किस प्रकार सेलेक्ट करना है, कौन से व्यक्ति के लिए, किस प्रकार की डायबिटीज के लिए, किस प्रकार की व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सी दवा अधिक उपयोगी, अधिक प्रभावी हो सकती है, यह हम चर्चा करेंगे। और यह अमूमन कहीं वर्णन इस तरह का सीधे नहीं।
तो इसलिए हम लोग अगले मॉड्यूल में आरंभ ही करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम दवाओं को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद एक एक दवा को हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, वह हम लोग अगले उसमें चर्चा करते जाएंगे कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, उस व्यक्ति में किस प्रकार से हम कौन कौन सी दवा हो सकती हैं और इनको हम कैसे हम पहचाने कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम दवा का चयन करते हैं। तो अगले वाले से हमारा जो मेन ट्रीटमेंट फोकस है वह आरंभ होगा, लेकिन उसके पहले यह ध्यान रखना है स्क्रीनिंग पर जोर बढ़ाना है। हर डायबिटिक पेशेंट के साथ माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, आप परिवार का भी भला कर रहे हैं, आप समाज का भी भला कर रहे हैं। और अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस में भी मददगारक है। एक व्यक्ति को डायबिटीज उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति को निकलेगी तो वह भी आपके पास आएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ध्यान से, बड़े हम उसके डॉक्टर साहब के प्रभाव बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारे और लोगों को स्क्रीन करके, जो लोगों को नहीं मालूम थे उनको भी पहले से सतर्क किया। Thank you so much, sir. Before we close, I would sincerely like to thank our course director, Dr. Pankaj Kumar Agrawal, sir, for sharing his experience and rich expertise on such an important subject. And he dealt with it so lucidly or itni simple language में कि I think it would add to the practice of everyone. हर किसी को benefit होगा अपने patients को देखने में. And I would also like to thank all the attendees for joining in today on a Sunday and taking time out of their busy schedules. So thank you all. We will close this session here. Thank you very much. नमस्कार। Thank you, sir.